Greeting of the time. Hereby we will discuss news headlines of the 28th May 2021 to check it out what's going around in world and in India. Good evening, hello and welcome. You're with the news today. This is your primetime destination news, newsmakers, talking points, and Thursday night, let's tell you what are the 9 headlines at 9 tonight. An ugly centre versus states vaccine war is now escalating. The Narendra Modi government blames the states for the vaccine shortage, red flags jab wastage. Congress says the centre doesn't have an action plan in place. Priyanka Gandhi says the centre is responsible for the failures. The Modi government lashes out at Twitter after the social media giant alleges intimidation. Government says Twitter cannot dictate India's legal policy framework. Fresh escalation in the doctors versus Ramdev fight. Delhi IMA files a police complaint against the yoga guru. Ramdev remains defiant, laughs off call for his arrest. US President Joe Biden orders a probe into COVID-19's Chinese origin, seeks report in 90 days. Biden says will press China to cooperate in the investigation. Zydus Cadila seeks drug regulators nod for clinical trials of its antibody cocktail. The wonder drug reportedly mimics natural antibodies to fight the COVID infection. India Today accesses the first pictures of wrestler Sushil Kumar allegedly attacking deceased Sagar Dhankar at Delhi's Chhatrasal Stadium on May 4th. Police are examining all the technical evidence. Kumar has been arrested a few days ago. Rumblings of revolt now in Karnataka. BJP once again as MLAs unite against Chief Minister B.S. Yediyurappa, seek an immediate change of guard. BSY rejects any threat to his post, says it's time to focus on COVID. PNB scam accused Mehul Choksi hunted down in Dominica in the West Indies. His lawyer claims that Choksi cannot be deported to India as he's a citizen of Antigua. The Antiguan Prime Minister will join us on the news today. And Zinedine Zidane steps down as Real Madrid's manager after a first season without a trophy in 11 years. Hereby let's check Uttar Pradesh development with Chief Minister Yogi Adityanath's interview. मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। शाम के 4 बज रहे हैं और आपको बता दें यूपी में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो खुद गांवों में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं और किस तरह से कोरोना से मुकाबला किया जा रहा है उसकी तैयारियों का वो जायजा भी ले रहे हैं। साथ ही साथ वो गांवों और शहरों में जाकर ये भी देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है क्या वो ठीक ढंग से चलाया जा रहा है और प्रयागराज में गंगा किनारे शवों का सच क्या है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। सुनिए जरा। देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। कोविड से लड़ने के लिए, यूपी के हालात का जायजा लेने के लिए जिला दर जिला दौरा कर रहे हैं। क्या चुनौतियां आई इस दौरान, क्या तैयारियां हैं तीसरे वेव को लेकर, यही जानने के लिए आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ। योगी जी, क्या चुनौतियां आपने देखी खास तौर पर दूसरी लहर से निपटने में? देखिए, कोरोना की आहट के साथ ही हम लोगों ने उन सभी चुनौतियों से लड़ने और उसका सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट वेव के समय ही इस बारे में कहा था कि हमें ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट पे जोर देना पड़ेगा। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतनी होगी और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश शुरू से ही इन चीजों को ध्यान देता रहा। फर्स्ट वेव के बारे में भी उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी आशंकाएं थी, हमने निर्मूल साबित की। सेकेंड वेव में भी
उत्तर प्रदेश के बारे में बड़ी आशंकाएं थी कि प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा केस आएंगे, एक समय 30 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस होंगे। उसको भी एक बार फिर से निर्मूल साबित कर दिया गया है और ये लगातार हमारा प्रयास है। देखिए, हमने टेस्ट की क्षमता को 0 से आज 3.5 लाख से ऊपर तक पहुंचाया है। कल हमारे यहाँ 3,56,000 टेस्ट हुए हैं, आज 3,47,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। बेड्स की स्थिति, जब पहला कोविड पेशेंट आया था तो यूपी में एक भी कोविड पॉजिटिव के लिए उपचार की व्यवस्था नहीं थी, बेड्स नहीं थे। आज हमारे पास 80,000 से अधिक बेड्स हैं। ये इस दौरान भारत सरकार के सहयोग से हमारे यानी शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग ने, चिकित्सा शिक्षा ने, सब ने मिलकर के जो प्रयास किया, आज उसका परिणाम हमारे सामने है। योगी जी, अगर हम दूसरे वेव की बात करें, इसमें एक वक्त ऐसा आया जब सोशल मीडिया हो या तमाम जगह पर बेड की कमी, ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों की खबरें आने लगी, लोग मदद मांगने लगे। ये ऐसी सिचुएशन क्यों आई? क्या पहली वेव के बाद से अधिकारियों ने कोई सबक नहीं सीखा? देखिए, ये कहना मुझे लगता है कि नासमझी होगी। जिनको जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं, स्थिति को पैनिक बनाने वाले और अफवाह फैलाने वाले लोग इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। स्थिति को अगर पैनिक नहीं बनाया होता है तो बहुत सारी जगह जो भगदड़ की स्थिति पैदा हुई है वो नहीं होती। एक दूसरा, हम महामारी से लड़ रहे हैं, एक सामान्य फ्लू से नहीं। महामारी में हर प्रकार के संसाधन कम पड़ते हैं, लेकिन हम मुकाबला कर रहे हैं, इसको फेस कर रहे हैं, उसका ये जज्बा होना चाहिए। उस समय हेल्थ वर्कर्स को, कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने के बजाय हतोत्साहित करना, ये पूरी लड़ाई को कमजोर करने जैसी थी। और दुर्भाग्य से कुछ संस्थाओं ने, कुछ लोगों ने काम की, इस प्रकार की शरारत की है। फर्स्ट वेव की तुलना में सेकेंड वेव में संक्रमण बहुत तीव्र था, 30 से 50 गुना संक्रमण था, तो स्वाभाविक रूप से उतने अधिक लोगों की डिमांड भी होती है। और आज उसी चीज को ध्यान में रख करके ये तैयारी की गई कि बेड्स की कमी ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, जीवन रक्षक आवश्यक दवाओं की कमी ना होने पाए, इन सब पर इसलिए फोकस किया गया। और उसी को लेकर के हम लोग थर्ड वेव को लेकर के भी से कार्रवाई अपनी प्रारंभ किए हैं। थर्ड वेव हमारी तैयारी यही है। बच्चों के प्रति आशंका व्यक्त की जा रही है, हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू का निर्माण हो जाए। अभी से अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन हमारा चले, निगरानी समितियां गांव-गांव जाकर के इस कार्यक्रम को कर रही हैं। पहले चरण में ही मेडिसिन किट उपलब्ध करा दो, पहले चरण में उनको हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा दो। गांव-गांव में जाके टेस्ट करो, क्योंकि गांव में लोग टेस्ट कराने से भागते हैं, मोहल्लों में दो रहते हैं अंदर, वे लोग टेस्ट कराने से भागते हैं। हमारी रैपिड रिस्पांस टीम वहां जाके टेस्ट करवा ले, जिससे लोगों को का भय दूर हो जाए। और यही कारण है, होता क्या है कि जब व्यक्ति लैब में जाता है तो कभी कभी अपना गलत टेलीफोन नंबर और गलत एड्रेस भी लिख पाता है जी। लेकिन जब टीम वहां जाएगी उसके एड्रेस पे तो कोई भी उसमें गलत नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोगों ने ये अभियान भी चलाया है और व्यापक सफल रहा है। निगरानी समितियों का डोर टू डोर कैंपेन, स्क्रीनिंग के दौरान ही हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवा देना, अगले 24 घंटे के अंदर उनका एंटीजन टेस्ट करा देना। ये जो अभियान हमारा है पिछले 26-27 दिनों से चल रहा है और इसके कारण संक्रमण की चेन को हर स्तर पर ब्रेक करने में हमें मदद। योगी जी, आपने वैक्सीन की बात की और टेस्टिंग की बात की। कुछ गांव में हम भी गए तो वहां पर आपकी टीम के साथ गए, जो लोग एम्बुलेंस से जा रहे थे वाराणसी में, तो हमने देखा टेस्टिंग के लिए लोग थोड़ा कतरा रहे थे, वैक्सीन के लिए भी थोड़ा सा एक आशंका लोगों के मन में है। तो इससे निपटने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? देखिए, हमने कहा ना, निगरानी समिति का अध्यक्ष चुने गए ग्राम प्रधान को बनाया गया है, वो उसी गांव का निवासी है। दूसरा, आशा और एएनएम, आंगनबाड़ी, ये उसी गांव से जुड़ी हुई हैं। उन लोगों का इंटरेक्शन पब्लिक से लगातार रहता है, वे लोग प्रेरित कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग उसको और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं।
कि हर गांव में जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया उनके चित्र लगा करके मैंने भी वैक्सीन लिया है और ये हमें सुरक्षा कवच देगा। इसको एक कैंपेन के रूप में हम लोग ले रहे हैं। तीसरा, CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर ही हम लोग वैक्सीनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ये हर ग्राम पंचायत में हो जाएगा, तो लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे ही दोनों, टेस्ट के लिए भी और वैक्सीन के लिए भी, ये दोनों कार्यक्रम हमारे उसी रूप में चल रहे हैं और हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का। योगी जी, एक प्रधानमंत्री जी ने आपकी चर्चा की थी वाराणसी में, काशी मॉडल की चर्चा की, तो क्या माना जाए कि तीसरा जो वेव आने की संभावना है उसकी आप लोगों की तैयारियां हैं? और विपक्ष लगातार प्रयागराज की कुछ तस्वीरें पोस्ट कर रहा है जो शवों की है, उस पर आपका क्या कहना? उस पर तमाम तरह की बातें की जा रही है, कहा जा रहा है परंपरा है, कुछ लोग कह रहे हैं गरीबी में है, क्या सच है? एक देखिए, विपक्ष की नकारात्मक भूमिका है हर एक मामले में। आप देख सकते हैं, जब भारत आतंकवादियों के खिलाफ, पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक करता है या सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तब भी लोग उस पर उंगली उठाते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी की इस एक सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ सभी लोगों को साथ लेकर के आह्वान करते हुए इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी जा रही हो, एक अभियान चलाया जा रहा हो, तब विपक्ष ब्रेकर बन करके भ्रम और अफवाह की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहा है। ये बहुत ही खराब स्थिति है। इन लोगों ने न केवल कोरोना के खिलाफ चलने वाले अभियान में ब्रेकर का काम किया है, बल्कि वैक्सीनेशन का भी दुष्प्रचार किया। आज जो लोग भ्रम की स्थिति में है, इस कारण है क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, बहुत सारे ने कहा ये बीजेपी का वैक्सीन है, बहुत सारे ने कहा, जिम्मेदार पदों पर जो लोग रहे उन्होंने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। ये जो अफवाह थी, इस प्रकार का भ्रम जो था, इस भ्रम ने, मुझे लगता है कि लोगों के सामने इस प्रकार की अफवाह ने भ्रम की स्थिति पैदा की है, उसी को दूर करने का प्रयास किया। एक राष्ट्रीय अपराध किया है जिन लोगों ने इस प्रकार की महामारी के दौरान इस प्रकार के भ्रम की स्थिति। योगी जी, आप बस एक अंतिम सवाल, आप एक महंत भी हैं, कुंभ को लेकर जिस तरह से चीजें फैलाई गई कि वहां की वजह से ये महामारी स्प्रेड हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? महाराष्ट्र के अंदर तो कोई कुंभ नहीं था, दिल्ली में भी कोई कुंभ नहीं था, अमेरिका में भी कोई कुंभ नहीं था। देखिए, जिनको वास्तविक जानकारी नहीं होती और जिनको देश की छवि को हर प्रकार से खराब करनी है, जिनके लिए देश के प्रति और देश की जनता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं है, वही लोग समूह पे राजनीति कर रहे हैं और वही लोग भारत की वैश्विक छवि को जबरदस्त धक्का पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इनका एक कृत्य अत्यंत ही गंदा है और मुझे लगता है कि जनता इनके इस कृत्य को लोग कभी माफ नहीं करेगी। दूसरे चरण पर ब्रेक लग गई है, योगी जी क्या कहना चाहेंगे आप यूपी की जनता को? हम पूरी तरीके से इसके लिए तैयार हैं। दूसरे फेज को, दूसरा जो लहर है, इसको नियंत्रित करने के नजदीक हैं, लेकिन लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। सतर्कता और सावधानी के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन हर व्यक्ति करे, टेस्ट कराने से न संकोच करें और वैक्सीन जरूर लें। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि नियंत्रण के काफी करीब हैं दूसरी लहर के और तीसरी लहर की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, बस्ती। तो वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है और टेस्टिंग से संकोच लोग न करें और वैक्सीन भी जरूर लगाएं और राज्य सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। जानकारी दे रहे थे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now. In whole conclusion, it's time to part our ways. We have checked it out, national, international and state developments around us. So with the promise to see you again soon, let's conclude.